बारिश में भीगते हुए दो सबसे प्रेमी नहीं कुख्यात छात्र हम ही लोग को ज़्यादा बेचैनी है प्रोग्राम क्या हो रहा है। गाड़ी लगा दें यहाँ आराम से धोआएगा दिन भर। इसलिए वहाँ पे है ना, होता है कोई फूल लेके जाता है, कोई शॉल लेके जाता है भाई। On Vikasit Bharat in Bihar, led by Sri Vikas Banerjee, IPS officer. We will also be graced by the presence of Honorable Vice Chancellor Professor Sanjay Srivastava, the campus director of Gandhi Bhavan, Professor Vasundhara Singh ji, the campus director of Vidya Parisar, Professor Ranjit Kumar Chaudhary, the campus director of VT Parisar, Professor Shirish Misra ji, along with the other deans, heads, and respective faculty members of this university. All are requested to please take their seats and maintain silence as the program is about to commence soon. In this Salara, may I request Professor Vasundhara Singh ji to kindly escort all the dignitaries to the dais. संगीत विद्याधरा बुद्धि ज्ञान कला प्रदस्य जगतो माता प्रिया। Thanks a lot. And now it is time to enjoy the harmonious rendering of the university anthem that aligns the glorious tradition of Bihar with the to felicitate Honorable Vice Chancellor Sir with a flower bouquet, a shawl, and the university emblem as a token of our love towards them. May I now request Honorable Vice Chancellor Sir to welcome our esteemed guest Sri Vikas Banerjee with a bouquet of flowers, a shawl, and the university emblem as a token of our respect towards them. I now request Dr. Shamkumar Shah, Head, Department of Sanskrit, to felicitate Professor Vasundhara Singh ji with a bouquet, a shawl, and the university emblem. Request Dr. Vimlesh Kumar Singh, Head, Department of English, to felicitate Professor Shirish Misra, Campus Director, DTU Parisar, with a bouquet, a shawl, and the university emblem. Request Dr. Anjali Srivastava, Head, Department of Hindi, to felicitate Professor Ranjit Kumar Chaudhary, Campus Director, Buddha Parisar, with a bouquet, a shawl, and the university emblem. भारत की संकल्पना और बिहार विषय की संगोष्ठी में उपस्थित सभी श्रोतजनों, विद्वज्जनों, शोधार्थियों, विद्यार्थियों, लेट्स इंस्पायर बिहार की टीम, सबका मैं अभिवादन करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। A very good afternoon to one and all present here. I am Chetna Tulashyan, a master's student in the Department of English, and it is a matter of great honor for me to introduce our esteemed guest, IPS Vikas Vaibhav, and it is a great opportunity for us as the students of Mahatma Gandhi Central University, where we have got the chance of having an interactive session with Sir. This will definitely benefit us as he is an infinite source of skills, acumen, poetry, and knowledge. The stage is all yours, sir. We can't wait to be addressed by you.
चले गए फिलोसफी सेक्शन, और फिलोसफी सेक्शन में हाथ पड़ गया उपनिषद पे, और तब पढ़ने लगे तो ज्योग्राफी उसी बिहार की प्राचीन मिथिला की नाम भी कुछ स्मरण आते थे। अभी मैत्रेयी का नाम प्रोफेसर प्रफुल्ल दत्त सिंह ले रहे थे, और तब मन कहने लगा क्या बात थी उस समय के बिहार में, इसके चिंतन को हम इस रूप में स्थापित पा रहे हैं। उस समय की महिलाएं भी ऐसी महिला हमारी गार्गी थी जो सारे विद्वानों को सबसे सर्वश्रेष्ठ विद्वान चुने गए, उनको चुनौती देने की क्षमता रखती थी। और उस बिहार में आज ऐसी स्थिति, उस समय 97-98 में बिहार की स्थिति थी, जाति के नाम पर संघर्ष चल रहा था, नरसंहार हो रहे थे, और विधि व्यवस्था की स्थिति बड़ी विवश थी। और तब उस समय IIT में जब पढ़ रहा था तो मन कहता कि मैं क्या कर सकता हूँ। IIT में जो बात मैंने समझी, बिहार तब क्या था तो कारण क्या था। यदि दृष्टि हम देखें तो एक मूलभूत दृष्टि का अंतर जो प्राचीन बिहार की दृष्टि में दिखता है, जो अन्य क्षेत्रों में नहीं दिखता है। इस प्रकार से दिखता है कि बिहार में जातियां तब भी थी, आज भी हैं, लेकिन जैसा जातिवाद आज हम देखते हैं, आप सभी विश्वविद्यालय के छात्र हैं, शोध कर सकते हैं, लाइब्रेरी में अध्ययन कर सकते हैं, मैं भी करता रहा, और मैंने यही पाया कि इस प्रकार की भावना यदि रही होती तो मगध में कभी नंदवंश का उदय नहीं होता। सबसे निम्न वर्ग के व्यक्ति शासक बन सके। उस समय के समाज में इस प्रकार की स्वीकार्यता थी कि जो व्यक्ति योग्य होगा, चाहे किसी वर्ग का आता हो, शासक हो सकता है। निश्चित है अनेक वर्गों ने आपत्ति भी की होगी, लेकिन नंदवंश का स्थापित होना अपने आप एक संकेत है कि हमारी मेच्योरिटी, हमारी दृष्टि कहां तक थी। यदि उसी समय के वैशाली की स्थापना की बात करें तो विश्व का प्रथम गणराज्य के रूप में उसे हम जानते हैं। जिस समय अवधारणा बड़ी स्पष्ट हो कि केवल शासक का पुत्र ही शासक होगा, किसी वर्ग विशेष का व्यक्ति ही शासक होगा, वो पूरे विश्व में था, कोई अपने क्षेत्र में नहीं था। वैशाली में भी स्थापित थे। वैशाली में भी यदि महाभारत को पढ़ेंगे तो पाएंगे वैशाली में क्षत्रिय वंश के शासन का स्मरण होता है। लेकिन एक समय वैशाली में ऐसी आई, जब ऐसा समय आया जब जो शासक थे योग्य नहीं पाए गए। एक व्यभिचार के आरोप में लोगों ने आरोपित किया, और तब आम सभा बुलाई गई और लोगों ने निर्णय लिया कि इस प्रकार से शासन नहीं चल सकता। और तब गणराजाओं की अवधारणा जन्म लेती है, गणराज्य की अवधारणा जन्म लेती है, और वैशाली उस रूप में स्थापित होती है, जो बहुत सशक्त गणराज्य के रूप में स्थापित होती गई। और मगध के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती के रूप में तब स्थापित हुई जब मगध विस्तार चाह रहा था। एक अलग कहानी है कैसे वैशाली का अंत हुआ। बहुत सारांश में कारण यही था, समर वेकेशन घर नहीं जाते थे तो बैठ के वेदों को पढ़ते थे। और तब मैंने देखा ऋग्वेद की सोच को देखते हैं तो उसमें उपासना का भी सूक्त पाते हैं। मुझसे बड़े विशेषज्ञ तो प्रोफेसर प्रफुल्ल दत्त जी हैं, प्रोफेसर जी चौधरी जी बैठे हैं, लेकिन जो मैंने अनुभव किया उसको मैं साझा करना चाहता हूँ। हम पाते हैं कि हमारे पूर्वज जिन्होंने वेदों की दृष्टि की रचना की है, ऋग्वेद के समय पर देखते हैं तो हम एक प्रकार से ईश्वर की उपासना कर रहे हैं, उन्हें अपनी समीप बुलाते हैं, आहुति प्रदान करते हैं, और मन में अभिलाषा करते हैं समाज की उन्नति हो, व्यक्तिगत उन्नति हो, अनेक प्रकार के लाभ के लिए हम प्रार्थना करते हैं, समाज के कल्याण के लिए हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन साथ साथ एक दर्शन की बात भी तब आती है जब हम कुछ सूक्तों को पढ़ते हैं, और उसमें विशेष रूप से नास्तीय सूक्त और हिरण्यगर्भ सूक्त बड़े महत्वपूर्ण है, जिसमें हम पढ़ते हैं कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, उससे पहले क्या था। तो ऋषि के मन में अनेक प्रकार के प्रश्न आते हैं, उससे पहले क्या था, उससे पहले तो न अंधकार था न प्रकाश था, न सुबह थी न रात थी। इस प्रकार करने की संशय की स्थिति में इस प्रकार का भी संशय रह जाता है कि सृष्टि का निर्माण जब हुआ तो शायद एक मन में पहली बीज काम रूप में आई, जो प्राचीन काल में जब कुछ नहीं था, एक कामना से इस पूरी सृष्टि की रचना हुई। कामस्त दगड़े संवर्तधारी मनसो रहता प्रथम गिरा से, उस प्रथम भावना से ही पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ। लेकिन उसमें हुआ कि जो जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया वो भी जानते हैं कि उनका निर्माण किसने किया, एक प्रकार का प्रश्न है। और कहीं न कहीं वैदिक काल में उस काल में जब जाते हैं एक प्रकार का प्रश्न कहीं न कहीं विद्यमान पाते हैं। यदि उद्यमिता का प्रसार हो, यदि स्वरोजगार की ओर हम लोग हर गांव में, हर पंचायत, हर विद्यालय में, हर महाविद्यालय में, और विशेषकर विश्वविद्यालय उसके लिए प्रेरक का कार्य करे, कैसे हर पंचायत में हम उद्यमिता को स्थापित कर सकें, स्टार्टअप्स की ओर कैसे हमारे युवा चल सके, और हम कर सकते हैं। तो प्राचीन काल में ऐसा कर सकते थे,
नए अपवाद प्रस्तुत कर सकते थे, तो आज नहीं कर सकते, इसका कोई कारण नहीं। लेकिन यदि दृष्टि हमारी बाधित हो जाएगी उन संघर्षों में जिनसे परे तो हम प्राचीन काल में सोचते थे, तो कहीं ना कहीं हम स्वयं उसके लिए जिम्मेदार जो स्थिति आज हो चुकी है। यदि बिहारी अपमान का सूचक बन गया, उसका जिम्मेदार कोई और नहीं। कभी इसी बिहारी का सम्मान अफगानिस्तान में प्रवर्तक के रूप में होता था, एक शासक के रूप में होता था। लेकिन इसी बिहारी पे यदि आज अपमान के रूप में लोग देखेंगे, उसके कारण कोई और नहीं, और बहुत जल्दी बदल सकता है। एक बात, 2 परिवर्तनों की हुई, बगहा की बात हो रही थी। बगहा में पोस्टिंग हुई थी 2006 में। उस समय तक बगहा के बोर्डिंग करके रोहतास पुलिस स्वागत करती है आपका रोहतास किले पर। अब जो भी देखता हंसता कि जिस किले पर कोई जा नहीं सकता, प्राणों पर संकट है, वहां जाने के बाद पुलिस कर रही है। और तब जब टूरिस्ट गाइड की ट्रेनिंग होने लगी, आदिवासी बच्चे आए, उनको उन्होंने टूरिस्ट गाइड बनाना शुरू किया, वो और हंसते। तो जहाँ टूरिस्ट कोई है ही नहीं, न कोई जाएगा, न कोई संभावना है, वहां के लिए टूरिस्ट गाइड तैयार कर दें। और तब मैंने कहा था, तो आज की बात करूं, मैं 20 साल बाद की सोच रहा हूँ, तो स्थिति बदलेंगी। और जब स्थितियां बदलेंगे, टूरिस्ट आएंगे, तो निश्चित गाइड को खोजेंगे। लेकिन अभी मेरा उद्देश्य यह नहीं है, मैं टूरिस्ट गाइड टूरिस्ट के ट्रेन नहीं कर रहा हूँ। टूरिस्ट गाइड में इसलिए ट्रेन कर रहा हूँ ताकि लोगों की दृष्टि बदले और उग्रवादियों से प्रश्न करें कि आपके कारण हमारे क्षेत्र का विकास बाधित हो रहा है। और यही हुआ। केवल 1 वर्ष में इस प्रकार की परिस्थिति बनी कि हर गांव में उग्रवादियों का विरोध होने लगा। और ऐसा विरोध हुआ कि उग्रवादी विवश हो गए और शस्त्रों के साथ उन्होंने भी आत्मसमर्पण कर दिया। रोहतास बदल चुका है। 2009 में पहली बार तिरंगा शान के साथ लहराया, प्रतिवर्ष लहराता, प्रतिदिन किले पर लहराता है। नहीं, जो समझ मैंने अभी तक ग्रहण की है बिहार को समझ करके, वही मैं आपने आपसे साझा की। कोई अपने विचार लेकर अपने कुछ नई डिस्कवरी लेकर नहीं घूमगा। जिस प्रकार से मैंने बिहार को समझा है, जो वेदांत की दृष्टि थी, मैंने आपसे साझा किस प्रकार से हमारे पूर्वज सोचते थे और किस प्रकार से जो बनाने में सक्षम हुए। निश्चित है आज भी हम कर सकते हैं। हम अपवाद प्रस्तुत करते रहे थे, आज भी नए अपवाद प्रस्तुत कर सकेंगे और नए सृजन के साथ भारत का नव भविष्य कर सकेंगे। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने इस ओजस्वी वक्तव्य में हमें प्राचीन बिहार की विरासत को दिखाया। आपने हमें वो बिहार दिखाया जहाँ पे स्थित लौरिया का अशोक स्तंभ, अरेराज का अशोक स्तंभ, एशिया का जो बौद्ध स्तूप है, वहाँ दक्षिण एशिया से कई बौद्ध भिक्षु आते थे। जहाँ नालंदा में पढ़ने के लिए जब विद्यार्थी आते थे, तो जो द्वारपाल होता था वो प्रश्नोत्तरी के माध्यम से उनकी योग्यता का निर्धारण करता था। शायद सभी लोगों को पता हो कि रामगढ़वा में जो 2 अशोक स्तंभ पाए गए हैं, उसका बुल कैपिटल राष्ट्रपति भवन में और उसका लाइन कैपिटल कोलकाता में नेशनल म्यूजियम में है। हालांकि उसके जो धड़ है, जो पिलर है, वो अब भी गिरे हुए हैं। आपने हमें उस बिहार के बारे में बताया जहाँ महावीर जैन और गौतम अपने संसार को त्याग कर गौतम बुद्ध बन गए, महावीर जैन जो है वो तीर्थंकर बन गए। और उसी बिहार में कुछ साल पहले लोग पकड़वा विवाह करवाते थे। आपने हमें ये भी बताया कि यही बिहार में विकसित भारत का सपना साकार करने का जो क्षमता है, वो भी इसी बिहार में छिपी हुई है। आपने ये बताया कि दुर्जनों की दुष्क्रियता से ज़्यादा सज्जनों की निष्क्रियता से समाज में ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। अपने जीवन के उदाहरण से और हम लोगों को आपने जो उद्यमिता की स्थापना करने का जो आपने जो प्रेरणा दिया है, उससे आपने विकसित भारत का सपना साकार होने का वादा किया है। हमारे जो छात्र हैं, मुझे मालूम था कि वो आपके इस ओजस्वी वक्तव्य से बहुत ज़्यादा प्रेरित होंगे। और अब मैं आग्रह करता हूँ इस सभा के अध्यक्ष माननीय कुलपति महोदय से कि वे आए और अपना अध्यक्षीय उद्बोधन दें। बिहार से मुझे व्यक्तिगत रूप से और देश को तो ही है बहुत उम्मीद है कि जो 2047 का भारत होगा उसमें बिहार बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। यानी ये जो समय है 23-24 साल का, इसमें हमें बहुत कुछ करना है और अपने स्टेट को भी, बिहार को भी बहुत आगे बढ़ाना है, बहुत इम्प्रूव करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कि बहुत तेजी से बिहार में बढ़ रहा है। अभी अगर आप सड़कें देखेंगे तो बहुत अच्छी हो रही हैं। अपने को उस
रास्ते से, उस दौड़ से अलग नहीं होने देना है जो विकसित भारत के स्वप्न का रास्ता है। और हमें उसमें, उस रास्ते में देश के अन्य लोगों के साथ मिल करके, चल करके बिहार को आगे ले जाना है और साथ में देश को आगे ले जाना है।